ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم ایک ایسا موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی صحت. آپ سوچیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہماری زندگی کے ہر ایک کام کا مرکز ہے، چاہے ہم چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا کوئی بھی جسمانی حرکت کر رہے ہوں. لیکن آج کل کے مصروف طرز زندگی، ناقص بیٹھنے کے طریقے اور جسمانی سرگرمی کی کمی کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل نہایت عام ہوتے جا رہے ہیں. ان مسائل کا شکار ہونا بہت سے افراد کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ مسائل بڑھ جائیں اور درد میں تبدیل ہو جائیں. زیادہ تر لوگ ان مسائل کو سرجری یا جراحی طریقہ کار سے حل کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی جدید اور مؤثر طریقے موجود ہیں جو کہ بغیر جراحی کے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیسے بغیر سرجری، غیر مداخلتی طریقے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر افضل حسین ہیں، جو کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے جدید غیر جراحی علاج کے ماہر ہیں. وہ ہمیں اس موضوع پر بہت عام معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ جدید علاج کیسے کام کرتا ہے، کن مریضوں کے لیے موضوع ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا، وعلیکم السلام، جس ٹریٹمنٹ کی میں نے ابھی بات کی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ نان انویزو طریقہ کار کیا ہے، کون سے ایسے نئے اور جدید طریقے آگے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ایکسپلین کروں کہ KKT کا کیا میتھڈ ہے اور کیا کرنا ہے، اس میں میں صرف 2 جملوں سے آپ کو ایک بات آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے باڈی کا سارا نظام برین کے کنٹرول میں ہے تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. بالکل. چاہے آپ کے پیر کے ناخن کا مسئلہ بھی ہو تو وہ برین سے ہی کنیکٹڈ ہے. تو اب جب میں یہ کہوں کہ اچھا اب اس کو ٹھیک کرنا بھی برین کا ہی کام ہے، صرف مینجمنٹ نہیں، مس مینجمنٹ بھی برین ہی ہینڈل کرتا ہے، تو اس میں پھر مختلف آراء آ جاتی ہیں اور مختلف طریقے بھی آ جاتے ہیں. مثلا اگر بیماری پیدا ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے جی میں اس کو دوائیوں سے ٹھیک کروں گا، کوئی ٹیکہ لگائے گا، کوئی اس کے بعد آپریشن کی بات کرے گا، کوئی لیزر کی بات کرے گا. تو بہت سارے آپ گنتے چلے جائیں، آپ گن نہیں پائیں گے جتنے طریقے آپ کو نظر آئیں گے. اور جہاں کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ ایک سے زیادہ طریقے رائج ہیں اور ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ابھی تک کسی کو سچ کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت کم لوگ یہ بات کرتے ہیں اس طرح سے. جی ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کمر درد، گردن درد اور جسمانی دردوں کی، سم ٹائم میگرین یا اس طرح کے جو ہیڈ ایک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کان میں جو آوازیں آتی ہیں جس کو ہم ٹینائٹس بولتے ہیں، اور چکر آتے ہیں جس کو ورٹائگو بولتے ہیں، تو یہ وہ مسائل ہیں جو جن لوگوں کو ہیں وہ اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ لائف لانگ ہے. دوائیاں لیتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت کنٹرول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ڈیفرنٹ اٹیکس آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں پھر اب اپنی بات، آپ کے سوال کا جواب شروع کرتا ہوں کہ KKT جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایکچولی اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ برین اس ڈس فنکشن کو ٹھیک کرے. برین ڈس فنکشن اگر برین کی موجودگی میں ہو گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تک ہم وجہ نہیں دیکھیں گے ہم اس کے سولوشن پہ نہیں جا سکتے. تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ جو اس کی وجہ ہے مین وہ یہ ہے کہ یہاں جو گردن کے مہرے ہیں یہ بہت نازک چیز ہے. اور ہمارے اکثر روٹین میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی کمر کو سیدھا رکھیں، کمر کو. میرا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کہیں گاڑی کو ٹھیک چلائیے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے چاروں ٹائروں کو پکڑ کے رکھیے، اس کی ڈائریکشن صحیح رکھیے. اس کو صحیح رکھنے کا میکانزم کیا ہے کہ آپ سٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ یہ والا جو ہے نا مہرا یہاں سے، یہ سٹیئرنگ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو سیدھا رکھ کے کمر ترچھی کر کے نہیں مجھے دکھا سکتے. بالکل صحیح. جب آپ اس کو سیدھا رکھیں گے آپ کی کمر لازمی سیدھی رہے گی. تو میں عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں کمر کو بھول جاؤ، یہ سٹیئرنگ سیدھا رکھو. ٹھیک ہے. جب آپ یہ سیدھا رکھیں گے آپ کے سارے اعضاء سیدھے رہیں گے. اور سٹیئرنگ رکھنے کو سیدھا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ اس کو ترچھا کرتے ہیں تو برین یہاں ہے جس نے آپ کے پیر کے ناخن کے ایکشن بھی کنٹرول کرنے ہیں، تو اس کی ساری کیبل یہاں سے گزر رہی ہے، نیک سے. اگر یہاں کوئی کنک یا ترچھا پن آ جائے گا تو وہ برین کے سگنلز کو متاثر کرے گا. ٹھیک ہے. اور برین کا جو میں نے آپ کو فنکشن بتایا کہ برین صرف یہ کہ مینجمنٹ نہیں کر رہا، مس مینجمنٹ کو بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو وہاں سے وہ مس مینجمنٹ پیدا ہونے کی وجہ بن جاتی ہے کہ جب برین کے سگنل پورے باڈی پر نہیں جا رہے ہوتے 100% ایکوریٹ، فرض کیجئے 10%، 5% متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں اور مثال سمجھانا چاہوں تو فالج جیسے ہوتا ہے لوگوں کو، تو یہاں سے فنکشن بند ہوتا ہے. ہلنا کیا چیز بند ہوتی ہے؟ ہاتھ اور پاؤں.
तो ब्रेन के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो वो समझिए अगर फालिज को आप 100% रेट करते हैं तो इसको आप 5% रेट कर लीजिए, 10% रेट कर लीजिए, लेकिन सोर्स यहीं से होता है और वो ब्रेन में इशू नहीं होता, नेक से जो सिग्नल पास हो रहे हैं वो उसमें इंटरप्शन आती है, तो हम फिर मोहरों को सीधा करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम केकेटी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो हम देखते हैं कि आजकल के दौर में तो मोबाइल फ़ोन के यूजेज की वजह से हम कह लें, हम लैपटॉप पर काम करने की वजह से कह लें, या वैसे भी हमने अपना पोस्चर काफ़ी ख़राब कर लिया हुआ है, तो ये आपने कितना डिफरेंस देखा पिछले हम 15 या 20 सालों की बात करें, जब से हम मोबाइल फ़ोन्स पर बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, तब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है अब? बहुत ज़्यादा। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब मैं वो मसले जो पहले आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बच्चों में जोड़ों का दर्द हो जाए या उनको गर्दन में दर्द हो जाए या कमर में दर्द हो जाए, तो आजकल मैं 4 से 5 साल के बच्चे में भी ये मसले देख रहा हूँ। ठीक है। और वो मसले आपको डिटेक्ट कैसे होंगे? बच्चा आमतौर पे या तो रोएगा रात को कि दर्दें हैं, माँ बाप समझ जाते हैं कहीं कोई मसला है, या उसके चलने में फ़र्क आ जाता है। माँ बाप नोट करते हैं कि बच्चे की चाल खराब हो गई है। ठीक है। तो इस तरह बच्चे प्रेजेंट करते हैं आमतौर पे, या फिर उनको तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से वो बेचैन होते हैं और उनको। ठीक है। अच्छा, ये जो केकेटी की हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, गैर जराही गैर मुदाखलती इलाज, नॉन इन्वेसिव, ये किस तरह से काम करता है, कितना सेफ है, इसका सक्सेस रेशो क्या है, या इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट? इसको भी मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन किसी का कंधे का जोड़ निकल जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं आप जाएंगे, डॉक्टर खींचेगा और 2 मिनट लगेंगे, उसको बिठा देगा, बिठाने के बाद वो इसको बांध देगा। ठीक है। कि जब आपने 1.5 महीना इसको हिलाना नहीं है। वो क्यों कह रहा है कि नहीं हिलाना? इसलिए कि जिसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स थे वो डैमेज हुए तो ये अपनी जगह से हिला था। बिल्कुल। और वो जब उसको बिठा देंगे तो उसको बिठाने से उस स्ट्रक्चर एकदम ठीक नहीं हो गए, उनको 1.5 महीना लगेगा ताकि वो हील अप हो जाए। उसके बाद हम शोल्डर की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये तो एक जोड़ है और इसके अंदर कोई नर्व भी नहीं गुजर रही। अब स्पाइन को आप ये समझिए कि तकरीबन 350 जोड़ है, यहाँ से शुरू होकर। आमतौर पे स्पाइन को लोग समझते हैं यहाँ है स्पाइन। स्पाइन आपके बेस ऑफ द स्कल से शुरू होकर दुमची की हड्डी तक जा रही है और वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर आप कभी उसके मॉडल को पकड़ के आप दरमियान से, आप जैसे L4 की बात अक्सर लोग करते हैं, अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे कि MRI में L4 का मसला आ गया। आप खाली L4 को हिला के दिखा दीजिए मुझे, आपको मैं मॉडल रखवा दूं और आप कहिए L4 को हिला दें, नहीं हिल सकता। ठीक। पूरी जो एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, उसमें आप एक चीज को नहीं हिला सकते। ठीक है। और अगर एक चीज हिल जाएगी तो फिर बाकी चीजों को आप हिलने से बचा नहीं सकेंगे। ठीक है। तो ये सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, सारा इम्बैलेंस। ठीक है। तो मैं ये मैसेज दूंगा ना सिर्फ ये कि अवामुन नास को, बल्कि अपने जो हमारे कलीग डॉक्टर्स हैं, कि आप स्पाइन को एज ए सेगमेंट ट्रीट ना करें, यानी कि एक पोर्शन को ट्रीट ना करें। स्पाइन को एज ए स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें, ओवरऑल ऊपर से नीचे तक। और ये भी बात उसके जहन में रखिए कि स्पाइन में से ब्रेन के सारे सिग्नल्स गुजर रहे हैं। तो स्पाइन की एक ट्विस्ट बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है। जिसको इस छोटे से वक्त में एनालिस्ट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन बेसिक बात यह है कि आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो आप फील करते हैं कि आप सुबह उठते हैं तो आप लोअर बैक जो आपकी वो पूरी स्टिफ हुई होती है, या सुबह उठते हैं आपको दिल नहीं करता काम पे जाने का, फटीग होती है, डिजीनेस होती है। तो ये सारी अलामात हैं जो शुरू में, थकावट सबसे पहला इसका साइन होता है जो इन पेशेंट्स को आता है। ठीक है। तो ये हमारी जो ये मैंने जैसे कहा कि आपके यहाँ से स्पाइन तिरछी होती है, तो हमारा एक सिस्टम ये है कि आवाज से चीजें हिलती हैं। रेजोनेंस साइंस की बुक्स में लोगों ने सबने पढ़ी हैं, बिफोर मैट्रिक पढ़ी हैं। और रेजोनेंस को एक खास डायरेक्शन में इस्तेमाल करना और उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना जो आपकी स्पाइन को बड़े पोलाइट तरीके से वाइब्रेट करके अपनी अलाइनमेंट पे वापस ले आए और ग्रेजुअली वापस लाए, क्योंकि इतने सारे जोड़ों को इकट्ठा नहीं बिठाया जा सकता। बिल्कुल। तो वो जब ग्रेजुअली हम करते हैं, और उसके लिए बड़ा साइंटिफिक तरीका है, कंप्यूटराइज कंट्रोल तरीका है, जिसमें हम साउंड वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं और स्पाइन को मूव करके उसके अलाइनमेंट ठीक करते हैं और उस वक्त तक ट्रीटमेंट देते हैं जब तक कि वहाँ वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक। अगर कोई शख्स उस स्टेबल होने से पहले ट्रीटमेंट छोड़ता है तो फिर वो
तकलीफ में दोबारा मुब्तला हो। दोबारा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये तो हम कह रहे हैं कि रिपेयरेबल तो है, मतलब ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, बट ये है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। जब भी सर जिस तरह से आपने बताया है कि फटीग है, स्टिफनेस है या डिजीनेस है, तो फिर हमें सबसे पहले किस टेस्ट की तरफ जाना है? हमें एक्सरे की तरफ जाना है, MRI की तरफ जाना है, या कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि हम अपनी स्पाइन को किस तरह से चेक कर सकते हैं? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि हम और आप जी। इंसान एक सुपर ऑटोमेटेड मशीन है। बिल्कुल ऐसी ही। सबसे पहला और सबसे रिलायबल सिग्नल मेरे और आपकी जुबान से निकलेगा कि मुझे ये मसला ये है, मसला है, बिल्कुल, तो उसको सीरियस लीजिए। ठीक है। ये मसले उस वक्त आपको शुरू हो जाएंगे जब कोई भी टेस्ट आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या हुआ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको जो मेरे पास टेस्ट लेकर आते हैं कि जी डॉक्टर साहब पता ही नहीं लग रहा टेस्ट है क्लियर क्या हैं? है क्या, टेस्ट क्लियर हैं सारे, ठीक है। लेकिन मुझे तकलीफ है, सिम्टम्स हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात मैं करूँगा जो समटाइम्स ऐसे ससुराल में होती हैं जहाँ पर उनको काम बहुत करने बहुत पड़ते ज़्यादा करना पड़ता हैं, है। और अगर वो काम में ज़रा से भी सुस्ती करें तो सास कहती है बहाना कर रही है, ठीक है। तो उनके घरेलू बहुत हालात खराब होते हैं। टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं, पट्ठों का खिंचाव है। 2-4 दफा पट्ठों खिंचाव के बाद वो कहते हैं साइकोलॉजिकल इशू है, डिप्रेशन का मरीज है, ये एंग्जाइटी है, ठीक तो उनकी जिंदगी बहुत मुतासिर होती है। और ऐसे उन नौजवानों की जो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी जॉब परफॉर्मेंस उनकी खराब हो रही है, ठीक छुट्टियां करनी पड़ती हैं उनको इसकी वजह से, लेकिन शुरू में कुछ पता नहीं चलता। अब आपने कहा टेस्ट करने हैं, तो टेस्ट में कई लोग मेरे पास आते हैं जो टेस्ट जो है ना आपने फैसला नहीं करना, ये आपका डॉक्टर फैसला करेगा, और उनको ये चाहिए बेसिक जो ब्लड टेस्ट होते हैं जो आर्थराइटिस के लिए किए जाते हैं जी, वो कर लें, बेसिक एक्सरेज कर लें, लेकिन गर्दन को इग्नोर ना करें। पेशेंट जहां भी पेन कंप्लेंट कर रहा है गर्दन को जरूर देखें। मेरे तजुर्बे में 90% से जायद केसेस में आपको नेक में क्लू मिलेगा बजाय इसके कि आपको कमर में क्लू मिले। ठीक है। तो एक्सरेज करें, और एक्सरेज में अगर आपको कोई शक शुबे पड़ते हैं तो फिर आप और एडिड इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें MRI भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा होगा जिनके रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं, वो उस दर्द का शिकार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की वजह से अगर उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बट वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, सर्जरी का नाम सुनते ही वो डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट मैं एक ओवरऑल आपसे देखिए, अगर मैं लिटरेचर के हवाले से बात करूँ जी, तो अगर 100 लोगों को दर्द है जी, तो उसमें सर्जरी की जरूरत हार्डली 3% को होगी। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन ये हो गया कि शायद हर पेशेंट का इलाज सर्जरी है। बिल्कुल, और ये किया जाता है हॉस्पिटल्स में जी, सर्जरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर 3% में ये रिस्क है, सर्जरी हो सकती है, तो 97% को डराने का कोई मकसद नहीं है। मकसद नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो आप 97% को हौसला दे सकते हैं कि भाई सर्जरी की ऐसी जरूरत नहीं है। और मैं आज आपके तवज्जुह से एक बातें ऐसी कर दूं कि अगर वो सब लोग याद रख लें तो उनका ये टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। मैंने जैसे कहा कि स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, ब्रेन की एक्सटेंशन जी, जो पूरी बॉडी में दाएं बाएं फैलती हैं, जो पूरी बॉडी का समझे कंट्रोल्ड एंड कमांड सिस्टम बॉडी का, ठीक है, यहाँ मौजूद है। तो जब भी आपको कोई नर्व डिसफंक्शन होगा या स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शन होगा तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। खाली निशानी ये नहीं है कि टांग में दर्द जा रही है और शैटिका हो गया, या बाजू में दर्द जा रही है और बाजू ज्यादा हम यही देखते हैं कि स्टैटिक नर्व का कह दिया जाता है। जी, शैटिका, टांग में दर्द जाए तो आप शैटिक नर्व कहते हैं जी, बाजू में दर्द जाए तो आप ब्रिकल्जिया कहते हैं बाजू के दर्द को। तो वो अगर दर्द हो तो वो नर्व की इरिटेशन से होता है, जरूरी नहीं कि कंप्रेशन हो। ठीक है। तो इरिटेशन से अगर दर्द हो रहा है और आप चेक करते हैं कि आपके बाजू की ताकत ठीक है, आप चेक करते हैं कि इनकी सेंसेशंस ठीक हैं, आप चेक करते हैं कि आपको पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है, खास तौर पे पेशाब वाली जगह जिसको हम पेरिनियम बोलते हैं, वो जगह में कोई सुन नहीं हो रहा, तो एक सुन नहीं हो रहा, दूसरा आपकी वीकनेस कोई नहीं है, और तीसरा आप ये कि जो ये सिम्टम्स है इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है वक्त के साथ साथ, तो ये केस सर्जरी का हरगिज नहीं है। ठीक, और इसको आप दूसरे तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं, और वो बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप हमारी टेक्निक यूज करें। यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट के हवाले से एक और बात करता हूँ कि पेन बहुत ज्यादा हर एक के लिए वरीसम एक चीज है कि पेन है, दर्द।
Obviously اس کا کوئی cause ہے پیچھے. اور انفارچونیٹلی تو میں اب میڈیا میں کہہ رہا ہوں بڑی زیادہ لوگ اس پہ اختلاف بھی کر دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمٹم کے لیے ہر چیز آپ بنا کے رکھ دیں کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا ہے. سمٹم ہوتا کیوں ہے؟ میں اپنے مریضوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو پین ہے نا یہ آپ کا گارڈ ہے. جیسے گارڈ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرنے کے دو طریقے ہیں, دو سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیں اور نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جب میرا مریض آتا ہے تو میں کہتا ہوں وہی گارڈ آپ کو میرے پاس لے کر آیا. اگر یہ گارڈ نہ ہوتا تو آپ میرے پاس کبھی نہ آتے. بالکل پتہ بھی نہیں چلتا. تو پین آپ کا گارڈ ہے. اب مجھے یہ بتائیے اگر کسی شخص کو خطرہ ہو تو اس کو گارڈ کی سے ضد کرنی چاہیے یا مان لینی چاہیے اس کو گارڈ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھنا چاہیے؟ پین کلر لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گارڈ کی آنکھ پہ پٹی باندھ کے رکھ رہے ہیں اور اس کی بات نہ مان کے اپنے ول پاور کا مظاہرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گارڈ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پین کلر لے کر یا اپنی ول پاور کو استعمال کر کے درد کو برداشت کرنے کے بجائے فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کی حل کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر افضل حسین ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں.